Good afternoon and welcome everyone to this live session. Hope you guys are doing fine. So, we are 3 minutes, 4-5 minutes early today. Yesterday we saw, okay, टाइम हो जाने दो, 2-3 मिनट में क्लास स्टार्ट करते हैं. किसी को कोई डाउट्स हैं तो आप पूछ सकते हो. Anybody having any doubt? Anybody, any doubts? अगर डेफिसिट फिनेंसिंग की जाएगी तो इनडेटेडनेस कंपनी की, अभिषेक का क्वेश्चन है, अभिषेक श्रीवास्तव, अगर डेफिसिट फिनेंसिंग की जाएगी तो इनडेटेडनेस नहीं बढ़ेगी तो इनडेटेडनेस बढ़ेगी, राइट? इनडेटेडनेस गवर्नमेंट की इनडेटेडनेस इंक्रीज होगी या नहीं होगी, ये डिपेंड करता है कि डेफिसिट को फिनेंस करने का सोर्स क्या है. डेफिसिट को फिनेंस करने का सोर्स अगर बोरोइंग है वर्ल्ड बैंक से या गवर्नमेंट सिक्योरिटी से तो वो नेचुरली इंक्रीज होगी, राइट? क्लियर? Shall we start now? इस टॉपिक के बाद आंसर राइटिंग के लिए क्वेश्चंस दे सकते हो क्या? यस. इसके बाद रादर हमारे 7th और 8th से ये टॉपिक बेस्ड ही, क्वेश्चन आंसर बेस्ड ही हो जाएगा. ये हमारा जो पूरा ये जो कोर्स है 90% 80% जो टाइम है इसमें आंसर राइटिंग में ही जाएगा. अभी क्योंकि आप लोग थोड़ा मैच्योर भी हो रहे हो, कैसे करंट अफेयर्स को देखना है, ये भी चीज़ें समझ आ गई होंगी. राइट? So this is there now. Yes, FCI reforms will also be talked about. Shanta Kumar committee, everything will be covered. This is second or third lecture, so everything will be covered, don't worry. We are going to talk about contract farming, we are going to talk about the reform of Essential Commodities Act, we are going to talk about Essential Commodities Act के साथ contract farming और APMC Act, मॉडल APMC Act के अराउंड जो चीज़ें करी हैं, जो ऑर्डिनेंस लाया गया है उसी पे ही हमें पहुंचना है. दैट इज़ आवर डेस्टिनेशन फॉर नाउ बिकॉज दैट इज़ द लेटेस्ट रिफॉर्म दैट हैज़ बीन अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. एंड in order for us to understand those things, we are taking an overview of the entire agriculture sector as to what is happening, what has happened in the last 2-3 years in the arena of agriculture. That way we will be in a better position to appreciate Contract Act, reform of FCI,
why is it needed, then what is farmer producer organization, everything. So this is what we had covered yesterday. आगे चलते हैं फटाफट, दो तीन स्कीम्स हैं एग्रीकल्चर की, उनको आज एनालाइज करेंगे. Who is a farmer? This is an age-old dilemma. Farmer himself does not know whether he is a farmer or not. A farmer is not merely a philosophical or semantic question, but rather has practical implications. The term farmer will refer to a person actively engaged in the economic and livelihood activity of growing crops and producing other primary agricultural commodities. All these things are there. Serious implications for the design of schemes. Government's ambiguity will have serious implications for the design and the beneficiaries of the schemes, including its flagship PM Kisan, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि. इन सारे प्रोग्राम्स के लिए भी गवर्नमेंट के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, राइट, कि कैसे इसको इंप्लीमेंट किया जाए. दिस इज व्हाट वी सॉ येस्टरडे. राइट, ठीक है. ये just 1 minute guys. So this is there. Now most schemes are for landowners. Schemes meant for the farmers welfare like MSP are available only for the landowners. Landless farmers may not be identified as farmers for the purpose of counting farmer suicides. According to census 2011, there are 11.8 crore cultivators and 14.4 crore agricultural workers. Landless farmers, they are excluded from access to agricultural credit and interest subvention for the farm loans, crop insurance, loan waivers. तो ये हमने कल समझा था सारा कुछ. And soil and fertilizers, we were supposed to start from this point. Kisan credit card eligibility. An individual farmer who is an owner cultivator, a group and joint borrowers. Joint borrowers भी मैंने कल बता दिया था. Self help group or a joint liability group of sharecroppers, farmers, tenant farmers, etc. In case of credit limit above rupees 1 lakh, beneficiary has to pledge the crops or pledge his land as mortgage. However, collateral security may be obtained at the discretion of the bank in some cases. Validity valid for 5 years, subject to annual review and performance of the borrower. Financing and rate of interest. Normally, farm loans attract an interest rate of 9%, but the government is providing 2% subsidy to ensure that the farmers get short-term farm loan at a concessional rate of, at an effective rate of 7% per annum. So what is the maximum amount of loan that is granted? 3 lakh rupees. ठीक है, अगर कोई फार्मर डिसिप्लिन रहता है, लोन्स को टाइम से पे करता है, अपने EMIs को टाइम से पे करता है, एडिशनल इंटरेस्ट सबवेंशन, एडिशनल इंटरेस्ट सबवेंशन, सबवेंशन मतलब ये गवर्नमेंट एब्जॉर्ब कर लेगी, सबवेंट हो जाएगा, of 3% will be provided. 2% initially for all the farmers and 3% more for the farmers who are paying their loans in a disciplined manner. It is being given to the farmers for prompt repayment of loans within due date, making the effective interest rate 4%. Making the effective interest rate 4%, right? So this is there. Effective interest rate इसमें इतना ज़्यादा लो हो जाएगा. कौन कौन एलिजिबल है हमने ये भी देख लिया. परफॉर्मेंस ऑफ किसान क्रेडिट कार्ड, दिस इज द क्रिटिकल इवैल्यूएशन. परफॉर्मेंस कैसे है, ठीक है, क्रिटिकल इवैल्यूएशन. करंटली देयर आर 6.95 करोड़ एक्टिव किसान क्रेडिट कार्ड्स अंडर विच क्रॉप लोन्स आर गिवन at a subsidized interest rate. Kisan credit card has been extended to farmers involved in animal husbandry and fishery activities as well. तो अब इसको 2018 से फिशरी एक्टिविटीज के लिए भी किसान क्रेडिट कार्ड के अंडर लोन्स लिए जा सकते हैं. प्लीज राइट डाउन. विद इफेक्ट फ्रॉम 2018, loans could be availed
loans could be availed for fishery sector as well. Clear? Loans could be availed for फिशरी सेक्टर एज वेल अंडर किसान क्रेडिट कार्ड. आगे चलते हैं. अब आते हैं सॉइल हेल्थ कार्ड पे. अ डेडिकेटेड स्कीम ऑन सॉइल हेल्थ कार्ड हैज बीन लॉन्च्ड टू टेक केयर ऑफ सॉइल हेल्थ फॉर द फर्स्ट टाइम इन अ uniform manner to evaluate the soil fertility across the country by Government of India in cooperation with the state governments. Soil health card contains the status of soil with respect to 14 parameters, namely these are there. Okay, NPK, sulfur, zinc, iron, ये सारा कुछ इसमें मेजर किया जाता है, राइट? तो इसको अच्छे से रट लेना, क्या क्या केमिकल्स को इसमें मेजर किया जाता है. पीएच स्केल क्या है पानी का? 7 जो है पानी का वाटर का स्केल होता है, बट अगर सैलिनिटी या एल्कलिनिटी या ये कहीं एसिडिटी, पानी का एसिडिक लेवल ज़्यादा है तो वो सॉइल के लिए हार्मफुल रहता है. तो इट ऑल्सो प्रोवाइड्स द क्रॉप वाइज फर्टिलाइजर रिकमेंडेशंस. सॉइल हेल्थ कार्ड हेल्प्स द फार्मर्स टू इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी बाय मेंटेनिंग सॉइल हेल्थ. सॉइल हेल्थ कार्ड ऑल्सो प्रमोट्स द जुडिशियस यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स. अब हमारे प्रॉब्लम क्या थी सॉइल हेल्थ कार्ड को लाने के लिए? द ग्रीन रेवोल्यूशन, द ग्रीन बेल्ट, ग्रीन रेवोल्यूशन जो बेल्ट है उसमें सॉइल का जो एल्कलिनिटी लेवल है या केमिकल लेवल है, ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ते चले जा रहा था. इसको रिजॉल्व करने के लिए ये चीज़ करी गई, राइट? इसको रिजॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ा गवर्नमेंट को? इसको रिजॉल्व करने के लिए ये करना पड़ा कि अब गवर्नमेंट केमिकल लेवल जो है उसको यूज़ को कम करने के लिए, फर्टिलाइजर्स के यूज़ को कम करने के लिए. दूसरा बड़ा चैलेंज था कि हम कुछ अपने फर्टिलाइजर्स के जो इंग्रेडिएंट्स हैं उन्हें हमें इंपोर्ट करना पड़ता था. वी वर डिपेंडेंट ऑन इंपोर्ट्स. तो 2017 बजट की हम बात करें, FFF सब्सिडी, फूड, फर्टिलाइजर एंड फ्यूल सब्सिडी वाज द हाईएस्ट. तो फूड एंड फर्टिलाइजर सब्सिडी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, फर्टिलाइजर्स इनपुट सब्सिडी फॉर एग्रीकल्चर, ठीक है, इनपुट सब्सिडी एंड आउटपुट सब्सिडी. मिनिमम सपोर्ट प्राइस वाज द इनपुट सब्सिडी. तो ये सारा लेवल बढ़ते चले जा रहा था इन सब्सिडीज का. इसीलिए फर्टिलाइजर सब्सिडी को कम करने के लिए कुछ इनिशिएटिव्स लिए गए. क्या इनिशिएटिव्स लिए गए? नीम कोटेड यूरिया, नीम कोटेड यूरिया एंड सॉइल हेल्थ कार्ड. सॉइल हेल्थ कार्ड के बेसिस पे जो मिक्स है एनपीके का, एनपीके जो फर्टिलाइजर्स अप्लाई किए जाते थे वो 3:2:1 की रेशो में अप्लाई किए जा रहे थे, राइट? तो अब सरकार ने उसको सॉइल के अकॉर्डिंग जो है चेंज कर दिया है, राइट? तो ये सारी जो चीज़ें हैं अब गवर्नमेंट जो है साइंटिफिक वे में इनको करवाना चाह रही है. ऐसा नहीं है कि एनपीके की रेशो को है कुछ भी यूनिवर्सली सबके लिए सेम रहेगी, नहीं. पोटेशियम की क्या रेशो होगी, नाइट्रोजन की क्या होगी, फॉस्फोरस की क्या होगी, ये सॉइल के ऊपर डिपेंड करेगा. इससे क्या होगा कि हमारे यहाँ पे अगर जो केमिकल्स, जो फर्टिलाइजर्स अवेलेबल हैं उनको ज़्यादा मात्रा में नहीं लगाया जाएगा. जस्ट बिकॉज अ फर्टिलाइजर एन इंग्रेडिएंट इज एप्लीकेबल डोमेस्टिकली does not mean that we should be overusing it. Those kind of things are there. Now, Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana has been formulated with the vision of extending the coverage of irrigation, हर खेत को पानी, and improving water use efficiency, more crop per drop in a focused manner with end-to-end solution on the source creation, distribution, management, field application and extension activities. Right, so these things are there.
Now, dedicated scheme like Paramparagat Krishi Vikas Yojana and Mission Organic Value Chain Development for Northeastern Region. Mission Organic Value Chain Development for Northeastern Region. This you can also use in a manner as to what is the government doing for agriculture, what is the government doing for Northeastern India, right? So this is there. इसी की दिशा में गवर्नमेंट ने क्या किया, कैबिनेट ने 1 अगस्त और यू कैन सिंपली राइट इन अगस्त 2019, इस कॉन्टेक्स्ट में सॉइल हेल्थ कार्ड के साथ में लिखो, प्लीज राइट डाउन अ पॉइंटर और अ क्वेश्चन, प्लीज राइट डाउन अ क्वेश्चन, व्हाट हैज द गवर्नमेंट डन फॉर What has the government done for scientific application of chemical fertilizers? Number 1, soil health card. Number 2, small initiatives, small yet incisive. Initiatives like neem coated urea. Small yet incisive initiatives like neem coated urea. ठीक है, अब लिखो थर्ड स्टेप. थर्ड स्टेप, कैबिनेट अप्रूव्ड न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी. Rates. Cabinet approved nutrient based subsidy rates. Cabinet approved nutrient based subsidy rates. So Department of Fertilizers is implementing this thing. Now nutrient based subsidy का फायदा क्या होगा? इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट जो है न्यूट्रिएंट बेसिस पे सब्सिडी देगी. ठीक है, न्यूट्रिएंट नाइट्रोजन के लिए 19 रुपीज पर केजी, बात को समझना. फॉस्फोरस के लिए 15 रुपीज एंड पोटैश के लिए जो है 11 रुपीज, सल्फर के लिए 4 रुपीज. अब ये इंडस्ट्री कैसे काम करती है, जरा ध्यान से सुनना. हाउ डज दिस इंडस्ट्री वर्क? सम ऑफ द केमिकल्स आर इम्पोर्टेड. ठीक है, अब यहाँ पे कुछ एक फैक्ट्री बना लेते हैं. दिस इज अ फैक्ट्री एंड इस फैक्ट्री में इम्पोर्टेड और डोमेस्टिकली प्रोक्योर्ड कुछ इम्पोर्टेड केमिकल्स लाए जाएंगे और उन इम्पोर्टेड केमिकल्स अगर उसकी कॉस्ट है मान लो कि नाइट्रोजन की कॉस्ट है 100 रुपीज़ पर लीटर या 100 रुपीज़ पर केजी. ठीक है, अब उसको माइनस कर दो, उसमें से 18 रुपीज़ गवर्नमेंट ने इसके लिए प्रोवाइड कर दिए. राइट, गवर्नमेंट ने ये नाइट्रोजन के लिए ज़्यादा सब्सिडी क्यों दी, फॉस्फोरस के लिए कम क्यों दी? Why 15 rupees? Because
you can say the Indian soil largely is rich in phosphorus content, relatively better phosphorus content is there. ठीक है, तो organic farming is an important thing. Praveen, please write down. Zero budget natural farming, yes, these things are there. ठीक है, वन बाय वन इन्हें कवर करेंगे. फॉस्फोरस के लिए कम दी. अब इंडस्ट्री जो है बिना सब्सिडी के इसकी कॉस्ट होती 1500 रुपीज पर बैग. ठीक है, पर 10 kg होती आउटपुट. लेकिन बिकॉज ऑफ सब्सिडी दिस कॉस्ट इज 1000 रुपीज पर बैग फॉर पर बैग ऑफ 10 kg. समझ में आया? ये क्या है? कोई कंपनी ले लेते हैं, नवज्योति केमिकल्स, नवज्योति फर्टिलाइजर्स. क्लियर? अब गवर्नमेंट ने इस सब्सिडी को रैशनलाइज किया है कुछ इस वे से, ताकि जो इनपुट्स हैं, इनपुट्स पे सब्सिडी को अगर आप रैशनलाइज कर दोगे, जिस पे ज्यादा सब्सिडी दोगे वो इनपुट ज्यादा रॉ मटेरियल में मिक्स किया जाएगा, जिस पे कम सब्सिडी दोगे वो कम किया जाएगा. सल्फर पे जो सब्सिडी है, सल्फर पे सिर्फ 3 रुपीज है. क्लियर? नो, you need not quote all these years and all. This is just for your memorization. August 2019 में क्या किया नहीं याद रखना, नहीं रखो, बट अच्छा इजी रहता है याद करना मेरे हिसाब से, अगर डेट्स वगैरह पता हो. ठीक है. नाउ, nutrient based subsidy scheme was approved for the first time in 2010. This you can memorize. Okay. NBS स्कीम जब प्रणब मुखर्जी फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे, ये तब लाई गई थी. न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम was sought to deregulate the subsidy on non-urea fertilizers. It was sought to deregulate subsidy on non-urea fertilizers. ठीक है. लिख लिया? It was sought to deregulate subsidy on non-urea fertilizers and it was expected to reduce the subsidy burden substantially. It was expected to reduce the subsidy burden substantially. As I told you, 2017 में भी गवर्नमेंट का जो फर्टिलाइजर सब्सिडी की वजह से हमें इंपोर्ट करना पड़ रहा था. ओके, यूरिया बेस्ड फर्टिलाइजर्स का बिल काफ़ी ज़्यादा आता है, इंपोर्ट करना पड़ता है सरकार को. while NBS certainly did not lead to, while nutrient based subsidy certainly did not lead to any decline in subsidy on fertilizers. Analysis है इसका. While NBS subsidy certainly did not lead to any decline in subsidy on fertilizers, it did lead to worsening of soil nutrient quality. It led to worsening of soil nutrient quality along with shortages and price increases in all three types of major nutrients. In all three types of major nutrients, which are nitrogenous, phosphoric and potassic.
considering the fact that fertilizer subsidy is the second biggest subsidy. Considering the fact that fertilizer subsidy is the second biggest subsidy after food subsidy, the inaction on the part of the government, the inaction on the part of the government is not only worrying for the fiscal situation but also detrimental to the health of the soil. Also detrimental to the health of the soil, right? So this is there. अब समझ में आया NBS है क्या? ये पॉलिसी फेल होती हुई नजर आ रही है, राइट? डीरेगुलेट किया गया था इस सब्सिडी को, एंड प्लीज राइट डाउन द रिकमेंडेड नाइट्रोजन फॉस्फोरस एंड पोटेशियम रेशो. व्हाट इज द रिकमेंडेड नाइट्रोजन फॉस्फोरस एंड पोटेशियम रेशो? NPK रेशो is 4:2:1. Recommended NPK is 4:2:1, right? The NPK ratio in 2013-14 was The NPK ratio in 2013-14 was 8:3:1. Sorry, 8:3:1. 8:3:1. Clear? The environmental damage caused by the inappropriate use of fertilizers, ये हमें पता ही है, ठीक है? तो environmental damage हो रहा है, ये सारा कुछ, ये चीज़ें जो है PIB में बीच बीच में आती रहती हैं, तो इसीलिए क्लियर है ये सबको? Anybody, why can't we produce subsidized in India? Why can't we produce fertilizers in India? Any major reason? Because we are scarce in some of the imported fertilizer ingredients. We are scarce in some of them, okay? तो अगर 2019 का डेटा हम देखें, इंडिया वी लिख लो इसको,
We are scarce in fertilizers like urea, DAP, diammonium phosphate. Diammonium phosphate, various grades of complex fertilizers like single super phosphate. Single super phosphate. Clear? Single super phosphate. Done? So this is their single super phosphate. तो अब in fiscal year 2019 India imported fertilizers worth almost worth almost 521 billion rupees. Clear? So this is the value of just 1 year, value of fertilizer imports in just 1 year. तो ये ट्रेंड है हमारे इंडिया का. अब इसमें क्या कर सकते हो? This largely constituted manufactured fertilizers. This largely constituted manufactured fertilizers than the crude ones. 521 billion rupees. $521 बिलियन का कितना मतलब हुआ? 52,100 करोड़. ठीक है, 52,100 crores. This constituted 1.3% of India's. This constituted 1.3% of India's total imports. Done? क्लियर है सबको? अगर और डेटा चाहिए, और भी डेटा है मतलब, बट ठीक है. दिस इज समथिंग आई एम टीचिंग यू फ्रॉम माई ओन एवर नोट. आई हैव मेड नोट्स आउट ऑफ इट. टुडे, प्लीज राइट डाउन. टुडे, urea is the only fertilizer. Today, urea is the only fertilizer under statutory price control. Today, urea is the only fertilizer under statutory price control. Done? अब स्टैट्यूटरी प्राइस कंट्रोल क्या है इसको भी समझेंगे.
Import of fertilizers other than urea, import of fertilizers. India imported fertilizers worth about 521 billion rupees या फिर 52,100 crores. 1 billion is equal to 100 crores. Okay. क्लियर है? लिख लिया आप सबने? नाउ import of fertilizers other than urea is free and they are commonly known as Open General License, OGL. Open General License. Other fertilizers are under Open General License. Clear? Other fertilizers are under Open General License. Various fertilizer companies import these fertilizers as per their commercial judgment. The government does not maintain the value of these imports. अब ये चीज जो है इसको डीरेगुलेट कर दिया गया, ठीक है? The government does not regulate the value of the price of these other right? So this is there. Now government is planning the direct benefit transfer on fertilizer subsidy. In financial year 2017, the government launched pilot projects. The government launched pilot projects for linking subsidy payments to producers. In financial year 2017, the government GOI launched pilot project for DBT for linking subsidy payments to producers of fertilizers. Okay, to fertilizer producers लिख लो, for linking subsidy payments to fertilizer producers. Does not. Aniket does not. Okay, so under the scheme, manufacturers receive 100% of subsidy. Under the pilot scheme, the manufacturers receive 100% of subsidy after fertilizer is delivered to the farmer, and the farmer's identity. Under the scheme, manufacturers receive 100% of subsidy after fertilizer is delivered to the farmer, and the latter's identity, which is Aadhaar, is captured on the point of sale machine,
and the farmer's identity is captured on the POS machine. So स्वाइप मशीन होती है ना, स्वाइप मशीन में अगर वो आइडेंटिटी फार्मर की कैप्चर हो गई आधार कार्ड के जरिए, ये उसने कार्ड स्वाइप करा और आधार कार्ड के जरिए वो आइडेंटिटी कैप्चर हो गई, तो फिर प्रोड्यूसर को सरकार बैलेंस जो है रीइंबर्स कर देगी। समझ में आया सबको? 1000 रुपये की 1500 रुपये का बैग था, 1000 रुपये में फार्मर को बेच दिया, रिमेनिंग जो 500 रुपीज़ हैं वो गवर्नमेंट पे करेगी, अगर वो फार्मर एलिजिबल फार्मर होगा तो। टर्म, अब देखो यहाँ पे जो है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो टर्म है, इट इज मिसलीडिंग एज सब्सिडी इज कंटिन्यूइंग टू बी रूटेड थ्रू द फर्टिलाइजर कंपनी, है ना, पॉइंट ऑफ सेल सेलर के थ्रू, तो ये डायरेक्ट सब्सिडी तो मिल नहीं रही। आइडियल सिचुएशन में क्या होना चाहिए? आइडियल सिचुएशन में ये होना चाहिए कि मैं अगर एक गरीब किसान हूं, मेरे अकाउंट में पैसे आ गए, अब मैं उससे फर्टिलाइजर खरीदूं, लेकिन ये आइडियल सिचुएशन यूटोपियन है। क्यों यूटोपियन है? मैंने सब पैसे लिए फर्टिलाइजर के लिए और मैंने क्या किया? ट्रैंक्विलाइजर, समझ रहे हो, दारू लेके आ जाऊंगा। यही होगा ना, गरीब फार्मर डाइवर्जन करने लगे, उसको सीधे पैसे मिल रहे हैं। अब फर्टिलाइजर लगाने के बावजूद भी कोई गारंटी नहीं है कि इंद्र देवता मेहरबान होंगे कि नहीं। फर्टिलाइजर इज जस्ट वन एस्पेक्ट, इसीलिए इरिगेशन वगैरह की गारंटी नहीं है, मॉनसून कैसा होगा नहीं गारंटी, इसलिए फार्मर क्या करता है, 1500 रुपये आए, चलो ठीक है अब मजे करो, राइट। इसलिए इसका डाइवर्जन नहीं हो। गवर्नमेंट इस डिलेमा में है कि अगर फार्मर को डायरेक्टली अकाउंट में सब्सिडी दी जाएगी तो क्या गारंटी है। दूसरा इसका वर्जन ये है, द सेकेंड एस्पेक्ट ऑफ इट इज फर्टिलाइजर कूपन्स। जो सारी डिस्कशन नीति आयोग के साथ में हुई वो सारा कुछ बता रहा हूं। फर्टिलाइजर कूपन्स ये होंगे कि आप, एक फार्मर अपना कूपन लेके जाएगा, 1000 रुपीज पे करेगा, उसको 500 रुपीज कूपन के जरिए मिल जाएंगे। दिस कूपन कुड बी अ डिजिटल नंबर, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। अब यहां से जो सेलर है इस डिजिटल नंबर को अपने सिस्टम में एंटर करेगा और ये बैग 1500 रुपीज वाला जो फर्टिलाइजर का बैग है वो 1000 रुपीज में बेच देगा। पर इसमें भी दिक्कत पता है क्या है? फर्टिलाइजर प्रोड्यूस नहीं किया और फर्टिलाइजर प्रोड्यूस करना नहीं पड़ा, ना ही उसको स्टॉक करना पड़ेगा प्रोड्यूसर को, सेलर को। अगर कोई सेलर है उसको सीधा ही 500 रुपये का मुनाफा मिल रहा है, 1000 रुपये का सामान, 1500 रुपये का सामान बेचने पे 500 रुपये उसको सीधे ही मिल रहे हैं, तो वो क्यों करेगा? तो वो ना, फार्मर भी परचेज नहीं करेगा, फार्मर जाएगा अपना कूपन लेके और सब्सिडी मिल गई। तो ये इनएफिशिएंसीज हैं, राइट। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर ये एक नॉमेनक्लेचर जो है गलत है, मिसनॉमर है, ठीक है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर इज अ मिसनॉमर। डन। कूपन वाला एक बार फिर बता रहा हूं, मैं इसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, जस्ट 1 मिनट। नंबर 1, अभी क्या चल रहा है, ठीक है। अभी ये चल रहा है यूरिया पे सरकार सब्सिडी देती है। ये इम्पोर्टेड, वन ऑफ माई अंकल्स हु वाज वंस अपॉन अ टाइम अ ट्रक ड्राइवर, ठीक है, ही इज़ अ फैमिली रिलेटिव। आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग थिंग्स टू यू, द इनसाइडर व्यू ऑफ इट। तो ही वर्कड वेरी हार्ड ड्यूरिंग हिज यूथ डेज एंड ऑल, नाउ ही इज़ द ऑनर ऑफ दिस कंपनी, आई एम जस्ट यूजिंग इट, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, ये यूरिया लेके आते हैं, परचेज करते हैं
और यूरिया को फर्टिलाइज़र में मिक्स करते हैं, NPK ये सारा कुछ, ठीक है, फर्टिलाइज़र बना। अब गवर्नमेंट इन्हें एक सेंट्रली डिटरमाइंड प्राइस होता है, उस सेंट्रली डिटरमाइंड प्राइस पे बेचते हैं, राइट। दे कैनॉट सेल इट ओपनली, मैक्सिमम रिटेल प्राइस इज कंट्रोल्ड बाय द सेंटर, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, 10 kgs का अगर एक बैग निकला, दिस इज द बैग ऑफ फर्टिलाइजर, इसकी कॉस्ट है 1500 रुपीज़। नाउ इसको बेचना कितने में, 1000 रुपीज़ में, राइट। अब 1000 रुपीज़ में जब इसे बेचा, 500 रुपीज़ दे देगी गवर्नमेंट बाद में। इस मेथड में इनएफिशिएंसी क्या है, यूरिया यहाँ से लाया गया और डाइवर्ट कर दिया गया यूरिया बाकी की इंडस्ट्रियल यूजेस के लिए, ठीक है। लेकिन डाइवर्ट क्यों करोगे, आप महंगे दाम पे इंपोर्ट करके लेके आ रहे हो, आपको सब्सिडी तभी मिलेगी जब आप इसको कन्वर्ट करके रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके बैग में मिक्स कर दोगे। अब जब ये मिक्स होके फर्टिलाइजर बन गया तो किसी काम का नहीं है, डाइवर्जन पॉसिबल नहीं है, है ना, डाइवर्ट नहीं कर सकते, नो डाइवर्जन इज पॉसिबल, क्योंकि वो तो फर्टिलाइजर बन गया। तो ये एक इसका एफिशिएंसी है। लेकिन इसमें इनएफिशिएंसी क्या है कि जो भी फार्मर whosoever ओपन एंडेड फॉर फार्मर्स, ठीक है, दिस इज एन ओपन एंडेड सब्सिडी। ओपन एंडेड मतलब कंपनी बिल दिखाएगी, ये बताएगी कि हमने इतना यूरिया परचेज किया, उसको एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर्स पैसे दे देगा। अमीर किसान ने लिया, गरीब किसान ने लिया, राशनिंग नहीं है, कैटेगराइजेशन इज नॉट पॉसिबल। दूसरा मेथड अब जो गवर्नमेंट कर रही है, जिसे हम DBT कह रहे हैं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कह रहे हैं, बट ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर नहीं है। इसमें क्या है, कंपनी ने फर्टिलाइजर बनाया, कंपनी ने अपने ही दाम पे बेचा, ठीक है, 1500 रुपीज़ पे बेचा। जो स्टॉकिस्ट है उसने ये अपनी पॉइंट ऑफ सेल मशीन में कार्ड स्वाइप किया, आधार कार्ड, और पेमेंट आ गई कितनी, 1000 रुपीज़। जब ये 1000 रुपीज़ का बिल, आधार कार्ड यहाँ पे डोवटेल्ड है, आधार कार्ड इज इंक्लूडेड, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दिक्कत है, आधार कार्ड जो गरीब होगा उसका आधार कार्ड होगा तो 1000 के 1500 मिल जाएंगे, और जो प्राइस यहाँ पे पॉइंट ऑफ सेल मशीन पे लगेगा वो अपने आप 1000 रुपीज़ हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। अगर तो अमीर फार्मर है, उसका आधार कार्ड पे एलिजिबल नहीं है, सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के अकॉर्डिंग वो फार्मर BPL नहीं है। अगर BPL है तो 1000 रुपीज़, अगर BPL नहीं है तो वो नॉन BPL के लिए 1500 रुपीज़ हो जाएगा ऑटोमेटिकली। डन, क्लियर है। अब इसमें क्या प्रॉब्लम है कि एक फार्मर गया, उसने बोला कि ये लो मेरा कार्ड, स्वाइप करो और बिल काट दो। इस स्टॉकिस्ट ने, ये जो दुकानदार है, इसने बोला कि अच्छा ठीक है, बिल काटना है, बिल काट देते हैं 1500 रुपये का, ठीक है, 1500 रुपये का बिल काटा, फर्टिलाइजर नहीं बेचा, सिर्फ आधार कार्ड स्वाइप हुआ और काम खत्म। ये भी तो हो सकता है ना, दिस इज व्हाट वी कॉल एज लीकेजेस। लीकेज है सिस्टम में, इसमें लीकेज नहीं है। फर्स्ट वाले में इनएफिशिएंसी ये है कि ओपन एंडेड है, अमीर फार्मर फर्टिलाइजर ज्यादा अप्लाई कर रहा है, उसको लगता है कि प्रोड्यूस बढ़ेगी, यस प्रोड्यूस बढ़ती है शॉर्ट रन में, मीडियम रन में, लॉन्ग रन में प्रोड्यूस कम होती चली जाएगी। क्यों, ओवर यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स हो रहा है, सॉइल हेल्थ खराब हो रही है, ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन हो रहा है, गवर्नमेंट का सब्सिडी बिल बढ़ रहा है अननेसेसरीली, है ना, ये एक चीज है। दूसरी चीज यहां पे क्या है कि यहां पे गवर्नमेंट डायरेक्टली बेनिफिट ट्रांसफर क्यों नहीं कर पा रही। अगर डायरेक्टली बेनिफिट ट्रांसफर कर दें, फार्मर को दे दिए 1500 रुपीज, जाओ जाके यूरिया ले आओ 3 पैकेट, 3 पैक कितने के आएंगे, 4500 के, 500 रुपीज पर सब्सिडी मिल गई। इसके लिए क्या चाहिए, लैंड रिकॉर्ड्स, जिनकी हमने कल बात करी थी। अब अगर लैंड रिकॉर्ड्स प्रॉपर नहीं है तो क्या करोगे, कौन से फार्मर को सब्सिडी मिलेगी, टेनेंसी लॉज प्रॉपर नहीं है ना। इसीलिए आधार कार्ड के जरिए जिनको जनधन योजना अकाउंट अवेलेबल है, फैसिलिटी, जो गरीब लोग हैं उनके आधार कार्ड नंबर्स पता है सरकार को। अब वो अगर अपने कार्ड पे सब्सिडाइज फर्टिलाइजर लेने जाएंगे तो उन्हें मिल जाएगा, बाकियों को, नॉन BPL वालों को सब्सिडाइज रेट पे नहीं मिलेगा। इसमें क्या है कि अगर डायरेक्टली सब्सिडी ट्रांसफर कर दी तो फार्मर क्या करेगा, फर्टिलाइजर लेने नहीं जाएगा, शराब के ठेके चला जाएगा, है ना, उसको शादी ब्याह में खर्च कर सकता है।
फार्मर सब्सिडाइज क्यों लेगा? क्योंकि फर्टिलाइज़र कोई इंश्योरेंस नहीं है, गारंटी नहीं है कि फर्टिलाइज़र लगाने, देयर आर अदर वेरिएबल्स। मॉनसून अच्छा आया कि नहीं, ये भी तो एक गारंटी है ना। अब अगर 7 दिन पहले 7 दिन में उसके पास मई के जून के फर्स्ट 7 डेज में 10 डेज में उसके पास सब्सिडी आई, लेकिन तब तक मॉनसून नहीं आया, मॉनसून नहीं आया तो क्या होगा? दारू। उसको लगेगा कि मॉनसून तो आना नहीं है, मैं फर्टिलाइजर्स में सरकार ने दिए 500,000 मुझे लगाने पड़ रहे हैं अपनी तरफ से, तो मैं 1000 क्यों लगाऊंगा? मैं उस 500 रुपए को सेव करके रखूंगा। क्यों? अदर एनेबलिंग फैक्टर्स लाइक इरिगेशन आर नॉट अवेलेबल। गेटिंग इट? आर यू गेटिंग इट? डन। तीसरा मेथड क्या है? थर्ड मेथड इज कूपन वाला। कूपन वाले मेथड में गवर्नमेंट ने डायरेक्टली एक कूपन दे दिया, कैश नहीं दिया, फर्टिलाइजर कूपन। अब ये कूपन कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा? फर्टिलाइजर शॉप पे। क्या वो फर्टिलाइजर शॉप पे जाएगा? नहीं। दारू वाले को वो कूपन दिया, दारू वाले ने बोला कि 500 रुपये का कूपन है, 450 में लूँगा, 450 रुपये की दारू दे दी, शराब दे दी। अब उसके बाद ये 450 वाला शराब वाले, ये फर्टिलाइजर वाले के पास में जाएगा, वो 400 रुपये दे देगा, सबकी कमाई। ये डाइवर्जन की वजह से गवर्नमेंट ये नहीं कर पा रही है, ठीक है। तो इसीलिए ये इंडिस्पेंसेबल बन जाती हैं। अभी तो धीरे धीरे से इसको बहुत कम हुआ है, ठीक है, इन पे डिपेंडेंस कम हुई है फर्टिलाइजर कंपनीज पे। अब ये कंपनीज को सब्सिडीज नहीं मिलती। पहले क्या होता था, यहाँ पे भी करप्शन है। इंपोर्ट का जो बिल दिखाया जा रहा है वो दिखाया जा रहा है 100 मिलियन टन्स का, लेकिन एक्चुअली में 80 मिलियन टन्स आया। 80 मिलियन टन्स का कस्टम्स डिपार्टमेंट से सर्टिफिकेट ले लिया कि हाँ 100 मिलियन टन्स है, और कंटेनर पहुंच गया। फर्टिलाइजर बनाया कम, दिखाया ज़्यादा। जो इंपोर्टेड फर्टिलाइजर है उस पर सब्सिडी मिल रही है, यूरिया पे मिल रही है ना, गवर्नमेंट उसके प्राइस को रेगुलेट कर रही है। अब ये लोग जानबूझ के ये दिखाते हैं कि हम 100 मिलियन टन्स लेके आए, लेकिन लेके आते हैं कम। 20 मिलियन टन्स पे अगर 30 रुपए के हिसाब से, 30 रुपीज़ के हिसाब से सब्सिडी मिल रही है पर टन, पर 100 पर 1000 केजीज, तो कितने पैसे हो गए? इसलिए गवर्नमेंट इस पे डिपेंडेंस कम करना चाहती है। अब ये सारे एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स के टॉपिक्स हैं, वो एक अलग बात है। यहाँ पे भी झोल होता है, ठीक है, यहाँ पे भी फ्रॉड है। ये एक फ्रॉड जो है, मतलब इसकी वजह से भी हमारा पैसा नुकसान में होता है। अब समझ में आया ये? अब लिखो, मैन्युफैक्चरर्स सेल द यूरिया, द मैन्युफैक्चरर्स सेल द यूरिया at the maximum retail price, which is controlled by the center. Which is controlled by the center. ठीक है। They also get subsidy reimbursement on unit specific basis. They also get the subsidy reimbursement on unit specific basis, 10 kg, 1 kg, under the new pricing scheme. Under the new pricing scheme. The manufacturers of non-urea fertilizers are given, uniform subsidy.
the manufacturers of non-urea fertilizers are given uniform subsidy on per nutrient basis under the nutrient based scheme, under the NBS. ये सारी चीजें एक एक करके कवर हो जाएंगी, ठीक है? अभी ग्रेजुअली समझते चलो. Right? So this is there. Now, अब 1 मिनट रुक जाओ. ठीक है, अब समझ में आया? ये सबको क्लियर है? डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर्स, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर administers all this. Just a minute. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड, अगले टॉपिक पे चलते हैं. अभी ये इसका ग्लिम्स ही दिया है, ठीक है? नाउ डिटेल स्कीम्स लाइक परंपरागत कृषि विकास योजना एंड मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन, ये भी हो गया था. Mega Food Park Scheme. The scheme aims at providing a mechanism to link agriculture production to the market by bringing together farmers, processors and retailers to ensure maximizing value addition, minimizing wastage. तो Mega Food Park Scheme, इसमें क्या ऑब्जेक्टिव्स क्या है? Ensure maximizing value addition, minimizing wastage, increasing farmers' income and creating employment opportunities, particularly in rural sector. So far, 17 mega food parks are operational currently. That is why I'm not dictating today. I'll get these lines on the PPT slides and it will be easier for you. So far, 17 mega food parks are operational currently. Ministry of Food Processing Industries has a plan to establish 42 mega food parks across the country. The Government of India has set a goal to increase the level of processed food from current 10% to 20%. Target is to raise the processing level of perishable from 6% to 20% and raise India's share in the global food processing industry from 1.5% to 3%. Okay, so Pratima, your question is very broad. I'll answer it अभी 5 minutes में, ठीक है? इसको पढ़ो, थोड़ा सा समझो खुद से एक बार, फटाफट से देखो. ये मेगा फूड पार्क स्कीम के ऑब्जेक्टिव्स हैं. यस, मैन्युफैक्चरर्स ऑफ दे आर ऑल्सो गिवन. ओके, तो ये इंपोर्टेड, मतलब इंपोर्ट जो है वो सिर्फ यूरिया का रेगुलेट किया जाता है, राइट? ठीक है, ये पढ़ लिया मेगा फूड पार्क स्कीम. यूनिफॉर्म सब्सिडी मतलब जो बैग निकाला जाता है उस पर कोई रेट नहीं है, ठीक है? उस पर मतलब पर इंग्रेडिएंट कोई सब्सिडी नहीं मिल रही, उस पर यह यूनिवर्सली एक लेवल दे दिया, उतनी सब्सिडी उस पूरे बैग पे मिलेगी, यूनिफॉर्म सब्सिडी.
अगर मान लो वो बैग जो है 568 रुपीज़ का है, 570 रुपीज़ का है, तो सरकार ने बोला 15% सब्सिडाइज कर दो। तो जितने भी उसमें इंग्रेडिएंट्स हैं, जितने भी केमिकल्स हैं, उन सब का प्राइस 15% सब्सिडाइज्ड हो जाएगा। क्लियर है? प्रोसेस फूड, इसमें फूड प्रोसेसिंग करी जाएगी, ठीक है। मेगा फूड पार्क्स में फूड प्रोसेसिंग करी जाएगी, ये मतलब है इसका। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज सेट अ गोल टू इंक्रीज द लेवल ऑफ प्रोसेस्ड फूड फ्रॉम द current 10% to 20%. Factual information: the financial assistance for mega food park is provided in the form of grant in aid at 50% of the eligible project cost in general areas and at 75% of the eligible project cost in northeastern region and difficult areas, subject to maximum of rupees 50 crore per project. Subject to maximum of rupees 50 crore per project. All right. So ये सारी चीजें, फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है 50%, मैक्सिमम कितना 50 करोड़ सरकार ये देगी। इसमें क्या होगा, जो इंडस्ट्री है, जो ब्रेड मेकिंग है, जैसे हमारे यहाँ पे जो है फॉरेन की ब्रेड मेकिंग कंपनीज आ रही हैं, फॉरेन की टोमेटो केचप मेकिंग कंपनीज आ रही हैं, जैम्स एंड जेलीज बनाने वाली कंपनीज, उनके पास है कुछ नहीं, उनके पास मैंगो में से पल्प कैसे निकालना है, ये कैसे एक्सट्रैक्ट करना है, ये टेक्निक्स हैं, उनके पास में ऐसी मशीनरी है। तो क्यों ना वो मशीनरी हमारे लोग इंडिजिनस फार्मर्स जो कि एग्री एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो इंडिया में से परचेज करके लाएं, फार्मर एंटरप्रेन्योर्स। इससे वैल्यू एडिशन इंडिया में रहेगा। ये मेगा फूड पार्क से इन इंडिया 35 to 40% ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर वेस्टेड। ऑल सॉर्ट्स ऑफ प्रोसेस्ड फूड इज नॉट बैड, ध्यान दो, ठीक है। फिट इंडिया और ये प्रोसेस्ड फूड अलग अलग नहीं है, बात समझो, राइट। फिट इंडिया का मतलब ये प्रोसेसिंग ऑफ फूड इज, जैसे हमारे यहाँ पे गोडाउन्स नहीं है, कोल्ड स्टोरेजेस नहीं है, उसकी वजह से 35 to 40% ऑफ फूड ग्रेन्स गो वेस्ट। तो कोल्ड स्टोरेज कैपेसिटी को बढ़ाना, प्रोसेसिंग को बढ़ाना, ये सारी चीज़ें करना गलत चीज़ें नहीं है। आप जो प्रोसेस्ड फूड का मतलब ले रहे हो, आप ऑयली फूड ले रहे हो, है ना, चिप्स ले रहे हो, ज़रूरी नहीं है, उसका मतलब ये थोड़ी है कि सिर्फ चिप्स और इन्हीं तक ही सीमित है। प्रोसेसिंग कैपेसिटी को मेगा फूड पार्क स्कीम में क्या बनाया जाएगा, कोल्ड स्टोरेज कैपेसिटी होगी, ट्रांसपोर्टेशन अच्छे से होगा, एग्रीकल्चर जहाँ पे पोटैटो ज़्यादा ग्रो हो रहा है वहाँ पे पोटैटो से रिलेटेड कोल्ड स्टोरेजेस, ट्रांसपोर्टेशन को मिनिमाइज करना, साइंटिफिकली पोटैटो को वॉश करना ताकि वो ख़राब नहीं हो, जो ख़राब है उसको सेग्रीगेट करना, ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, राइट। नाउ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना was launched in February 2016, Administrative Ministry, Agriculture and Farmers Welfare. Objective: it provides a comprehensive insurance cover against failure of the crop, thus helping in stabilizing the income of the farmers. Coverage: the scheme covers all food and oilseed crops and annual commercial horticultural crops for which past yield data is available. Funding pattern: the prescribed premium is 2% to be paid by farmers for all kharif crops and 1.5% for all rabi crops. In the case of annual commercial and horticultural crops, premium is 5%. Okay, on paper there is no upper limit on subsidy by the government, which bears the expense even if the balance premium is 90%. अब यहाँ पे देखो प्रीमियम कितना है, 2% to be paid by the farmer for all kharif crops. कितना, जो कॉस्ट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फर्टिलाइजर्स है, सारा कुछ, ठीक है, जो पे फार्मर करेगा। ये कैसे कॉस्ट निकाली जाएगी, जो पिछले साल जो हार्वेस्ट हुआ था, प्रीवियस ईयर में अगर हार्वेस्ट का जो प्राइस था कितना डिराइव किया गया उसके बेसिस पे, ठीक है। लास्ट ईयर अगर प्राइस मिला था 25,000, तो 25,000 रुपये का 2%, 25,000 का 2%। राबी क्रॉप के लिए ये कम है। In case of annual commercial and horticultural crops like coffee, sugarcane, premium is 5%.
पेपर पे कोई अपर लिमिट नहीं है, जितने ज़्यादा फार्मर्स एनरोल करेंगे सरकार उतने ज़्यादा फार्मर्स के लिए इंश्योरेंस कंपनी को पैसा रीइम्बर्स करती चली जाएगी। ठीक है, इफ द टोटल इंश्योरेंस अंडर रिटन बाय द इंश्योरेंस कंपनी, total amount of insurance underwritten by the company is 50,000 crore, government will provide 90% of it. Scheme is compulsory for loany farmers availing crop loan और किसान क्रेडिट कार्ड अकाउंट फार्मर्स, ताकि किसान क्रेडिट कार्ड लेने वाले फार्मर्स क्रॉप फेलियर की वजह से लोन देने से चूके नहीं। ठीक है, they should not be reneging on their loan obligations just because of crop failure. So दिस इज अनदर फैक्टर। जो आपने प्रतिमा ने पूछा था क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन था आपका? प्रतिमा का क्वेश्चन था व्हाट शुड बी द एक्यूरेट मेथड टू स्टॉप लीकेजेस। क्या है कि अगर आप एक किसान को देखो तो यहाँ पे क्लाइमेटिक वैगरीज हैं, ठीक है, प्राइस फ्लक्चुएशंस हैं जिसके लिए हम एमएसपी लेके आ रहे हैं, फिर इरिगेशन होना चाहिए, राइट, फिनेंसिंग प्रॉपर मिल जाए, सारे एनेबलिंग फैक्टरों। तो चोरी करना कौन चाहता है? कोई लीकेजेस क्यों करना चाहेगा? डायरेक्टली हम 2018 का 2020 का जो इकोनॉमिक सर्वे है उसमें प्राइम मिनिस्टर की एक बात को इनकॉर्पोरेट किया गया है। क्या इनकॉर्पोरेट किया गया उनकी बात को? कि हम लोग विश्वास नहीं करते, स्टेट सिटीजन का विश्वास नहीं कर रही, इसीलिए आधार कार्ड है, इसीलिए सस्पिशन ऑफ द स्टेट है। चैप्टर 1 इज डेडिकेटेड टू ट्रस्ट। अब दिक्कत क्या है? ट्रस्ट करने के लिए गलती फार्मर की नहीं है। इफ यू क्रिएट ऑल द एनेबलिंग कंडीशंस फॉर एन एंटरप्रेन्योर टू बिकम एंटरप्रेन्योर, व्हाई वुड एनीवन नॉट वांट टू लीड अ सिंपल लाइफ? मतलब नॉर्मल कोई रेनेज करके फ्रॉडस्टर कोई क्यों बनना चाहेगा, है ना? फार्मर भी नहीं बनना चाहता, विजय माल्या भी नहीं बनना चाहते थे। अगर आप कुछ ऐसी एनेबलिंग कंडीशंस क्रिएट कर दो, फिनेंस एट रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाए, क्लाइमेट वैगरीज से फार्मर को बचाने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जैसी योजनाएं आ जाएं, तो कोई नहीं करना चाहेगा। समझ में आया? तो गवर्नमेंट धीरे धीरे इन सारी चीज़ों को फुलफिल करने की कोशिश कर रही है, राइट, डबलिंग दी ऑब्जेक्ट इनकम ऑफ द फार्मर्स। और जब ये सारे फैक्टर्स मिसिंग हो जाते हैं तो फार्मर सुइसाइड कर रहा है। तो आप इंटेंशन समझ सकते हो। अगर हम पूरी एग्रीकल्चरल स्ट्रक्चर को, एग्रीकल्चर सिस्टम को अपनी कंट्री में समझें, इरिगेशन में वी आर लैकिंग। द वेरी फर्स्ट स्लाइड ऑफ दिस पीपीटी टेल्स यू एज टू हाउ मच ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज आर देयर। फिर फिनेंस में हम अटक रहे हैं, फिर मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ये सारी चीजें हैं। समझ में आया? नाउ फिनेंस, क्लाइमेट और चीजें बताओ, इसको फिलअप करो। प्रोसेसिंग नहीं है, फार्मर को डिस्ट्रेस सेलिंग करनी पड़ रही है, इसीलिए जो मेगा फूड पार्क स्कीम है वो आ गई। उसमें कोल्ड स्टोरेजेस बनाए जाएंगे, फूड प्रोसेसिंग होगी। तो इंडस्ट्री को, अगर हम फूड प्रोसेस करेगा फार्मर या इंडस्ट्री होगी प्रॉपर, तो उनको भी फार्मर को ऑरेंजेस का, एप्पल्स का, पोटैटोज का, टोमेटोज का एडिक्वेट प्राइस पे करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। गॉट इट? ये सारी चीजें हैं यहाँ पे। The scheme is implemented by empaneled general insurance companies. The selection of implementing agencies is done by concerned state government through bidding. रिलायंस इंश्योरेंस को या प्राइवेट कंपनीज को चूज किया जाता है कि पर हेक्टेयर क्या प्राइस होगा इंश्योरेंस फैसिलिटी देने का। ठीक है, अगर इंश्योरेंस कंपनी जो बिडिंग में सबसे कम प्राइस कोट करती है कि 1000 रुपीज़ पर हेक्टेयर, 2000 रुपीज़ पर हेक्टेयर, उसको चूज कर लिया जाता है। जो कम दे रहा है 1000 वाला, उसको चूज कर लिया जाएगा। इन ऑर्डर टू सेटल क्लेम्स फॉर वाइड स्प्रेड डैमेज, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना यूजेस एन एरिया अप्रोच wherein insurance unit is reduced to village और पंचायत लेवल फॉर मेजर क्रॉप्स, ओनली फॉर मेजर क्रॉप्स। यानी कि पहले वाली जो स्कीम्स थी, न्यू एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम 2004 में लाई गई, उसमें क्या होता था, पर फार्मर अपने अपने क्लेम्स सबको भेजने होते थे। जब कभी क्रॉप डैमेज हुआ, मॉनसून फेलियर हुआ या आग लग गई, तो फार्मर को अपने रिपोर्ट जो है
इंडिविजुअली भेजनी होगी। अगर मॉनसून नहीं आया तो पूरे विलेज में नहीं आया। ऐसा थोड़ी है कि एक फार्मर के खेत पे बारिश हुई, दूसरे के पे नहीं हुई। इसीलिए दिस स्कीम इज एन इम्प्रूवमेंट अबव दिस स्कीम इज एन इम्प्रूवमेंट ओवर अदर एग्जिस्टिंग स्कीम्स। क्यों? इट फॉलोज द एरिया अप्रोच, नॉट द फार्म अप्रोच। फार्म अप्रोच में क्या है? every owner of a farmland had to file individual application to the insurance company. Clear? Yes, there was a brief lag, just minor. क्लियर है अब ये सबको? डन? तो along with the landslide and hailstorm, even inundation, flooding has been incorporated as a localized calamity. Localized मतलब विलेज में, अगर ये जरूरी नहीं है इस स्कीम के अंदर कि पूरा डिस्ट्रिक्ट तबाह हुआ हो, पूरा डिस्ट्रिक्ट इनंडेट हुआ हो, फ्लडेड हुआ हो। अगर 4 विलेजेस में भी अगर क्रॉप डैमेज हुआ है तो उनके क्लेम्स एंटरटेन किए जाएंगे। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना फैसिलिटेट्स द फार्मर्स टू गेट देयर क्लेम ऑफ full sum insured without any reduction by taking off capping on premium provisions as well as other reductions on the sum insured. Along with landslide and hailstorm, even inundation has been incorporated as a localized calamity. Assessment at the individual farm level is now provided for the post-harvest losses. If the question comes in the prelims whether post-harvest losses are covered or not, yes, they are covered. Are you getting it? Yes, they are covered. Is now provided for the loss. This involves losses caused due to unseasonal and cyclonic rains throughout the country, which destroy the crops kept for drying up to a period of 2 weeks. Post harvest losses. मैंने फसल काट के रखी, उसकी ढेरी बना दी, ठीक है ना, वो हीप ऑफ फूड ग्रेन्स देखते हो ना, इतने में बारिश हो गई, none of my faults. Post harvest losses are also covered. Yes, Vipin. In the area based approach, all the farmers will be covered automatically. So these are the very salient features. What else is what new thing is being covered, what new kind of a disaster is being covered? Okay, climatic phenomena is being covered, landslide, hailstorm, inundation, flooding भी cover हो रही है, post harvest losses cover हो रहे हैं, yes. Prevented sowing, अब ये देखो ये कितना यूनिक फीचर है। अगर मैंने जो एग्जाम्पल दिया 1 जून से लेकर 10 जून में ऑर्डिनरीली मॉनसून होता है, 25 जून अगर कट ऑफ डेट इंश्योरेंस कंपनी ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने दे दी कि 25 जून तक अगर आप अपने फूड ग्रेन्स सो नहीं कर पाए, पूरा का पूरा सीजन वेस्ट चला गया, बारिश नहीं हुई, तो प्रिवेंटेड सोइंग लॉस मतलब पास्ट ईयर की जून 2019 के इनकम के हिसाब से जून 2020 की इनकम भी कवर की जाएगी। उतना मुआवजा दिया जाएगा अगर किसी फार्मर ने जून 2019 में बोई गई क्रॉप से, सो की गई क्रॉप से 25,000 रुपीज अक्टूबर में जब राइस की कटाई होती है 25,000 रुपये अर्न करे थे, तो उसे 25,000 रुपये अपने आप मिल जाएंगे। 25,000 का 25% अपने आप मिल जाएगा। क्लेम्स अप टू 25%। क्यों? क्योंकि 75% तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होती है हर बिजनेस में, 25% मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे भी अगर हम लेके चले उतना मिल जाएगा। तो यानी कि फार्मर ने 25,000 रुपीज अर्न करने के लिए मान लो कितने पैसे लगाए होंगे, 17,500, इतने तो लगे ही होंगे, 7,500 उसे बचेंगे, वो 7,500 अब कवर्ड है। क्लियर? Innovative technologies for faster and efficient estimation of crop losses are
used. GIS, drones or smartphones or remote sensing satellite technologies are being used. ठीक है, तो टू इंश्योर अर्ली सेटलमेंट ऑफ इंश्योरेंस क्लेम्स. पहले वाली न्यू एग्रीकल्चर एश्योरेंस स्कीम में क्या होता था, घर घर जाके सर्वेयर्स होते थे, एक्चुअरीज होते थे लॉस असेसमेंट के लिए. एक्चुअरीज होते थे, इंश्योरेंस कंपनीज हायर करती थी, वो एक्चुअल डैमेज कितना हुआ है उस गांव में जाके चेक करके आएंगे. अब सॉइल में मॉइस्चर कितना था, प्रिवेंटेड सोइंग हुई कि नहीं हुई, ड्रोन्स बेस्ड साइंटिफिक सॉफ्टवेयर बेस्ड प्रोसेसिंग ऑफ क्लेम्स विल बी डन. नो पर्टिकुलर एरिया, इट इज एन एरिया. ओपन एंडेड सब्सिडी है ना, हमने यहाँ पे देखा, कोई पर्टिकुलर एरिया नहीं है. ठीक है, बट इसमें अलग तरह का एक क्रिटिकल एनालिसिस है जो हम अभी थोड़ी देर में देखेंगे. नाउ हु इज लायबल टू पे, वेक अप, गुड मॉर्निंग मनीष, ऐसे मत करो यार. देखो मैं पढ़ा रहा हूँ इतनी देर से, ये सारा कुछ लिखा तो है. प्रिस्क्राइब्ड प्रीमियम इज 2% टू बी पेड बाय फार्मर, 1.5% फॉर रबी एंड कॉमर्शियल क्रॉप्स के लिए ये है. अब कोई अपर सब्सिडी नहीं है. सेंट्रल गवर्नमेंट जो है 90% तक, स्टेट गवर्नमेंट रिमेनिंग 5% स्टेट गवर्नमेंट देगी, जो ये बैलेंस है. ठीक है, 90% सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है, 2% फार्मर, 8% स्टेट. कमर्शियल क्रॉप्स के केस में 90% सेंटर, 5% स्टेट और 5% फार्मर. क्लियर? ओके, सो प्लीज रीड इट केयरफुली, याद करो यहीं पे. डन. अभी इसमें 2020 में फरवरी में कुछ कुछ जो चेंजेस लाई थी उनको नोट कर लो, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. Farm gate price, now please write down, as per the changes introduced in the scheme, as per the changes introduced in the scheme in February 2020, the farm gate price, underline the farm gate price, underline farm gate price will be considered for the other crops for which MSP is not provided. Second change, the states or UTs. Second, the states or UTs will also be given the flexibility to implement the scheme. States or UTs will also be given
the flexibility just 1 minute guys, this some drilling work is going on. Flexibility to select, flexibility to any or many additional risk covers, एनी और मैनी रिस्क कवर. स्टेट गवर्नमेंट्स को अब ये फ्लेक्सिबिलिटी दी जा रही है, पहले सेंट्रल गवर्नमेंट के पास थी. अर्लियर दिस फ्लेक्सिबिलिटी वॉज विद द सेंट्रल गवर्नमेंट. States or UTs will also be given the flexibility to implement the scheme with the option to select any or many additional risk covers like prevented sowing, localized calamity, mid-season adversity and post-harvest losses. Got it? Like prevented sowing, अब स्टेट गवर्नमेंट्स भी इनमें डिटरमाइन कर पाएंगे. प्रिवेंटेड सोइंग, लोकल कैलामिटी, लोकलाइज्ड कैलामिटी, अगर कोई क्राइसिस लोकल एरिया में है. कवरेज ऑफ क्रॉप्स, ये जो हमने यहां पे लिखा है कवरेज, इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन लिखो. कवरेज ऑफ क्रॉप्स नंबर 1, अब यहां पे ये ऑयल सीड्स लिखा है वैसे तो ठीक है. ऑयल सीड्स आपको याद रखना है, ऑयल सीड्स डैमेज इसमें कवर्ड है. ओके, ऑयल सीड्स डैमेज इज कवर्ड इन दिस. डन. नाउ अ फार्मर, प्लीज राइट डाउन, अ फार्मर कैन ऑप्ट फॉर add-on coverage. Add-on coverage इतनी डिटेल में कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है. Add-on coverage they can opt, जैसे हम करते हैं ना एड-ऑन्स, कुछ पिज्जा में एक्स्ट्रा टॉपिंग्स चाहिए या कुछ भी एड-ऑन करवाते हैं, जैसे अमेजन से कुछ ऑर्डर करते हो तो बर्थडे के लिए कुछ एड-ऑन करवा लिया, पैकिंग एंड ऑल. तो एड-ऑन कवरेज फॉर क्रॉप लॉस ड्यू टू अटैक बाय वाइल्ड एनिमल्स. ठीक है, तो स्टेट गवर्नमेंट्स ये पॉलिसी बना सकती हैं. अगर कोई एड ऑन कवरेज लेना चाहता है तो वो ले सकता है. ओके, आधार हैज बीन मेड मैंडेटरी फॉर all the availing farmers. Aadhaar is mandatory for this. Done. For now, please write down. I'm so sorry. For defining a crop as a major crop. अब यहां पे लिखा है ना हमने मेजर क्रॉप्स, ठीक है. For defining the major crops, for defining a crop as a major crop, for deciding the insurance unit level, for defining a crop as a major crop, for defining a crop as a major crop, for deciding the insurance unit level, the sown area, comma, the sown area of that crop
should be at least 25% of the gross cropped area. Okay. Most important change is allocation of business. Next point, allocation of business to the insurance companies to be done for 3 years. Allocation of business to the insurance companies to be done for 3 years. ओके पहले क्या होता था, इंश्योरेंस कंपनी ये कहती थी कि हमने 1 साल का ठेका लिया, इंश्योरेंस किया, अब 1 साल उस साल ड्राउट हो गया, उस इंश्योरेंस कंपनी को तो लॉसेस बेयर करने पड़ गए, दूसरे साल फिर ड्राउट हो गया, तीसरे साल में शायद बेनिफिट हो जाए, अगर लॉस नहीं होगा तो जो प्रीमियम कलेक्ट करा है वो कमाई हो जाएगी, प्रॉफिट हो जाएगा, है ना। अगर मॉनसून प्रॉपर होता है तो बेनिफिशियल है, 1 साल में नुकसान ज़्यादा है, इसीलिए इंश्योरेंस कंपनी को जिसको कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा एक पर्टिकुलर स्टेट का, डिस्ट्रिक्ट का या नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स का, वो फॉर मोर देन 1 ईयर होगा, 3 ईयर्स होगा, so that they can recover the losses if in case in one particular year there is a monsoon failure or there is any kind of डिज़ास्टर। जैसे 2013 में उत्तराखंड में डिज़ास्टर हो गया, अब अगर 2013 में ये स्कीम होती और जिस प्राइवेट कंपनी ने ठेका लिया होता, कॉन्ट्रैक्ट लिया होता, वो नुकसान में होती, भले ही कितना प्रीमियम रिकवर हो गया हो, लेकिन 2014, 15, 16 में मॉनसून अच्छा होगा तो पैसे रिकवर हो जाएंगे। ठीक है, नाउ प्लीज नाउ another important change, central share in the premium subsidy to be increased to 90% for northeastern states. Central share in the premium subsidy to be increased to 90% for the northeastern states from existing sharing pattern of 50-50. From existing sharing pattern of 50-50. ठीक है, for other states central subsidy to be limited to 30% of premium. Central subsidy for the premium rates to be limited up to 30% of premium for unirrigated areas and 20% for 25% for not 20%, 25% for
अनइरिगेटेड फॉर इरिगेटेड एरियाज। अब सेंटर ने अपना शेयर कट कर दिया है, ठीक है, डन। Now this is your homework for today. You will read it. I will start the class from this class, this particular slide tomorrow. ठीक है, ये सारा कुछ लिखा भी हुआ है इसमें, बट शेयरिंग रेशियो जो है 25% रहेगी इरिगेटेड एरियाज में, क्योंकि वहाँ पे नुकसान होने की संभावना कम है। 30% रहेगी अनइरिगेटेड में, बाकी का 65% अब स्टेट्स को देना पड़ेगा। नाउ स्टेट्स विल हैव टू बेयर more than 50% of the expense. Remaining 2 to 5% will be from the farmer contribution भी होगी इसमें, ठीक है। तो ये कल सारा कवर करेंगे इसको। How to improve the implementation, PK मिश्रा कमेटी रिपोर्ट रिकमेंडेशंस, ये सारा कुछ इसी पे ही है, ठीक है। फिर उसके बाद हम कवर करेंगे वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम इन द नेक्स्ट क्लास टुमारो। बीच बीच में ये डिटेल्स रहेंगी। देखो मैं बीच बीच में डिटेल्स इसलिए देता हूँ और देता रहूँगा, 10%, 15%, मैक्सिमम 20% डिक्टेशन होगा, क्योंकि तुम लोग फिर क्लासेस अटेंड नहीं करोगे। और फिर नोट्स तो देखो पूरा इंटरनेट ही पड़ा है, फिर तो पूरा वर्ल्ड ही अपना है ना, इसीलिए। रेस्ट 70%, 65 to 70% टू बी 65 to 68% टू बी बॉर्न बाय द स्टेट। 25% सेंटर दे देगा, 60% स्टेट, 70% स्टेट दे देगी, ठीक है। 5% इन केस ऑफ कमर्शियल क्रॉप्स टू बी बॉर्न बाय द फार्मर, 1.5 to 2% फॉर राबी एंड खारिफ, ठीक है ना। सो दिस इज देयर। नाउ धीरे धीरे और एनरिच करता चला जाऊंगा। तुम लोग इस क्लास के बाद ये असेसमेंट किया करो कि तुमसे क्या एक्सपेक्टेड है। ये डिक्टेशन और ये सब से नहीं है। देखो ये जो सीक्वेंस है इससे एक आइडिया लगता है। अब इसके अलावा कोई और डायमेंशन सोचो कि क्या हो सकती है। हमने पहले स्कीम के फीचर्स देखे, ठीक है, सेलिएंट फीचर्स देखते हैं हम किसी भी टॉपिक के। अब इसके सेलिएंट फीचर्स पढ़े, उसके बाद ऑपरेशनलाइजेशन, जो ऑपरेशनल डिटेल्स हैं हमने वो समझी, फिर उसके बाद चैलेंजेस क्या आ रहे हैं हमने वो समझे, हाउ टू इम्प्रूव समझा। इसके लिए हाउ टू इम्प्रूव के लिए पीके मिश्रा कमेटी रिपोर्ट अगर कोई है तो हमने उसे कवर किया। उसके बाद अदर की रिकमेंडेशंस जो नबर्ड की हैं ये एक्स्ट्रा पॉइंट्स हो जाएंगे, ठीक है। देन एलिगेशंस ऑफ करप्शन ये आ रहे हैं, इसको भी समझेंगे। ये वीकनेस में ही इनकॉर्पोरेट हो चुका है। दिस इज एज द चेंज इन द टेक्स्ट। यहाँ पे क्या है, टाइम्स न्यू रोमन चल रहा है। अगर कहीं पे टेक्स्ट चेंज होता है तो वो एक न्यूज़ क्लिपिंग का पार्ट होता है। मेरे क्लासेस में न्यूज़ क्लिपिंग के पार्ट से आप समझ सकते हो इट्स अ काइंड ऑफ अ स्टोरी। क्यों? क्योंकि ये पी साईनाथ ने कही है, ठीक है। तो हमें इससे चीज़ों को रिटेन करने में आसानी रहती है। दिस इज़ अ काइंड ऑफ स्टोरी, काइंड ऑफ अ बैकग्राउंड। ये मेरी क्लासेस में इसलिए रहता है कि आपको ये पता लग सके द क्रिटिसिज्म, द पॉइंट दैट वी आर डिराइविंग फ्रॉम दिस स्लाइड। ये जो पी साईनाथ ने कहा ये काफ़ी सेंसेशनल न्यूज़ हुई थी, ठीक है। ये पॉइंट कहीं ना कहीं यहाँ इनकॉर्पोरेट हो चुका है चैलेंजेस में, बट रीआइटरेशन के लिए, वैलिडेशन के लिए हमने उस स्लाइड को इनकॉर्पोरेट किया। अब आपको इसको नहीं रटना, राइट। दिस इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, क्लियर। अब फिर वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम सेम चलेगा। कवरेज क्या है, फंडिंग पैटर्न क्या है, फिर पीरियड ऑफ रिस्क क्या कवर्ड है, सेलिएंट फीचर्स आ गए, ठीक है। सेम अप्रोच फॉलो करते हुए चलेंगे स्कीम्स के लिए। प्रीमियम रेट्स यहाँ पे थोड़ा डिटेल्ड में है क्योंकि फ्रेगमेंटेशन और क्लासिफिकेशन ज़्यादा है इसमें। इंश्योरेंस कंपनीज, चैलेंजेस, उसके बाद ख़त्म, क्योंकि इंप्रूवमेंट के लिए कुछ ज़्यादा इसमें नहीं हुआ है, क्लियर। So this was all for today's class, guys. Thank you everyone. See you at 5:30 for Indian polity, for Indian economy. Thank you, guys.